Yes. Yes, is there someone, the session coordinator who can start the session? Sir, good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Sir, Good I'm a technical person who's Good afternoon. Good afternoon, sir. organizing this course from HRDC, MMTTC AMU. Sorry. Sir, our director is in the meeting with the Yeah, Vice Chancellor. yeah. Yes, he called me. So I request you to please start the session as you have started yesterday also. Yeah, thank you. Thank you very much, sir. Thank you so much. So, dear participants, welcome back in the session second. I'm very lucky to meet you all second time today, right? Yesterday we discussed so many, I think, new things regarding credit program, transfer of credit, and then, the concept of multidisciplinary. That was really very interesting to share with you all, because we all know that we are now with a new policy on higher education, even on secondary and primary education also. The policy is for all education. But for higher education, certainly we have some, very interesting, good new things that you all have to take care, right? So in continuation of the same session, हम लोगों ने जो कल बात की थी ना कि कई सारे और भी अच्छी जानकारियां जो आपसे हम शेयर करना चाहते हैं. Yes, thank you so much. So many messages are there in the chat box. But thank you all. Please don't post the message, right? Switch on your video and be interactive in the session. Yeah. Thank you. Thank you so much. Actually, talking to you all and reading the messages simultaneously is not fair. Huh? So once we are face to face, then we can do all that thing. In online mode, I think the best protocol is to switch on your video, as you all done yesterday, and really made a good interactive session. So again, I am not going to share you any PPT, but if you require a PPT, I can share you all that PDF copy of PPT. You can go through. A very interesting PPT we have, including some small videos, some GIFs and all. But my interest is to talk to you all and at least clear something so that you can understand NEP 2020, really how to implement it and from where to start, especially the few concepts. So I hope हम समझते हैं कि जो हम विकास की बात आजकल करते हैं ना, भाई हमारे देश में विकास होना चाहिए. और विकास कैसा होना चाहिए? विकास ऐसा होना चाहिए जो हम दुनिया में अपना अच्छा नाम कर सकें. ठीक है, अभी हम आर्थिक विकास में 5वें नंबर पे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं. और ज्ञान के माने में हम बहुत पहले से नंबर 1 पे रहते ही थे. अब आजकल क्या स्थिति है, वी डोंट नो अबाउट नॉलेज. अब पता नहीं कि हम विश्व गुरु हैं या कोई और आ गया है. कोई और तो नहीं आया है अभी तक. जो आप भी पढ़ते होंगे, जगह जगह सुनते होंगे, तो देयर इज नो लिस्ट एट द इंटरनेशनल लेवल जहां पे ये कहा जाए कि कोई देश विश्व गुरु बन गया.
तो जब कोई और नहीं बना तो हम पहले थे, इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि हम ही हैं, है ना। तो जब ज्ञान में हम नंबर 1 पहले थे और दूसरा कोई नहीं आया तो हम मान लेते हैं कि हम ही हैं। लेकिन जो बदलाव हुआ वो ये हुआ कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, और ऐसा प्रोजेक्शन है कि आने वाले दिनों में और अच्छा हो जाएगा। सो इफ आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग, and economy is growing faster than anyone else, our growth rate is good, we are blessed that we have a huge young population our country. तो लोग यंग हैं, यंग मीन्स एनर्जी है उनके पास, और ज्ञान पहले से था वो भी है, और इकोनॉमी भी अच्छी है। तो इन जब तीनों चीजें हमारे पास अच्छा है तो हम शायद और बेहतरीन काम कर सकते हैं। हालांकि जितने शिक्षक हमें ऑन स्क्रीन दिख रहे हैं, आई कैन सी डॉक्टर नरेंद्र कुशवाहा, सोनू राज, दीपक, so I request others also to switch on the video, right, so that really you वीडियो ऑन है सर। can video। हाँ, अर्चना को तो ऑन है, अर्चना का तो ऑन है। सो अर्चना, बात कर रहे थे कि हम सब जानते हैं जो हमारे कॉलेजेस हैं, खास करके जो रूरल एरियाज में हैं, जितने टीचर्स यहाँ पे रूरल एरियाज या क्लास बी या सी सिटीज से आते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चैलेंज्ड है। तो जब ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कि हम मोनो डिसिप्लिन में तो स्ट्रगल कर रहे थे, अब हमें इंटर डिसिप्लिनरी, क्रॉस डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी में काम करना है, तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं, संसाधन भी बढ़ रहे हैं। क्या? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर इज रियली वेरी मच चैलेंज्ड। लेकिन हम ये देखते हैं अर्चना कि इंफ्रास्ट्रक्चर भले कम हो, लेकिन हमारे टीचर्स बहुत स्मार्ट हैं, हमारे स्टूडेंट्स तो और स्मार्ट हैं, और वही स्मार्ट स्टूडेंट भी ही टीचर बनते हैं। हमारे स्टूडेंट इतने स्मार्ट हैं कि सुंदर पिचई, सत्यम नडेला जैसे बहुत बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज, माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के हमारे यहाँ से बने हैं, और दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारे लोग जाके रिसर्च भी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, नवोन्वेशन कर रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं। और कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स अच्छे तरह से काम न कर रहे हों। लेकिन हमारे देश में विदेश के बहुत कम टीचर्स आपको मिलेंगे, खास करके जो बहुत विकसित हम लोगों से आगे अपने को कहते हैं, चीन और अमेरिका। अगर ये लोग आते भी हैं तो कोई जो हमारे महानगर है ना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या 2-4 और, वहां पे महीने 2 महीने के लिए आते हैं, कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स या बड़े अस्पतालों में काम करके फिर वही चले जाते हैं। इसलिए हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो विकास, चाहे हमारे देश का विकास हो, चाहे ज्ञान और शोध के लिए विदेशों की धरती हो, हर जगह जो 5 कॉन्टिनेंट हैं दुनिया में, 5 कॉन्टिनेंट पे हमारे देश के शिक्षक शिक्षा का भी कार्य कर रहे हैं, शोध का भी काम कर रहे हैं। और अब तो चंद्रमा और मिशन भास्कर वो सब भी चल रहा है। तो कब हमारे शिक्षक बहुत कम खर्च में, बहुत कम संसाधनों में, बहुत कम खर्च करके भी हम लोग चांद पे पहुंच गए। ऐसा ही कोई अर्चना, ऐसा ही कोई राम नरेश पाल जो हमारे सामने दिख रहे हैं, ये भी वैसा ही नाम करेंगे जैसा हमारे आप लोगों ने सुना होगा कि एक लेडी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला, और वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे शिक्षा का काम कर रही थी। मलाला यूसुफजई सर। मलाला यूसुफजई। Yes, Ashok. Yeah, Poonam. So Malala Yousafzai is the youngest lady, youngest girl
youngest woman, whatever you want to say. She got the Nobel Prize, the youngest lady to got the Nobel Prize. And she got the Nobel Prize for what? She got the Nobel Prize for teaching, for educating, for making learn. Whom? The girls, the young girls, जो स्कूल कॉलेज सिस्टम में आते ही नहीं थे, जो ड्रॉप आउट्स थे, और वहां सब ड्रॉप आउट्स ही हैं। उस एरिया में वो एक कन्फ्लिक्ट एरिया है, कन्फ्लिक्ट जोन है, जो आतंकवादियों से घिरा हुआ है। और आतंकवादी लोग वहां यंग गर्ल से कैसा व्यवहार करते होंगे, आप शिक्षक हैं, समझदार हैं, आप कल्पना कर सकते हो, उसको कहने की जरूरत नहीं है। और केवल गर्ल्स ही क्यों, जो यंग बॉयज हैं या सिविलियंस हैं, जो वहां की जनता है, उन सब के साथ भी टेररिस्ट का क्या व्यवहार होता है, वी कैन इमेजिन। उसी के विरोध में मलाला यूसुफजई ने यंग गर्ल्स को एजुकेशन देने, उनको शिक्षा देने, उनको लर्निंग करने, उनको स्किल करने का काम शुरू किया। और ऐसा किया कि वो लोग आतंकवादियों के चंगुल से मुक्त हो गए और अपने विकास के जो भी उनका जीवन यापन का तरीका है उसमें लगे हैं। इसी काम के लिए उनको नोबेल प्राइज मिला। अब ये बात हम आपके सामने पूनम इसलिए रखे हैं कि आप तो टीचर हैं और अब तो आप इस कार्यक्रम में दक्ष गुरु बन रहे हैं। इसका नाम ही है गुरु दक्षता। तो अब तो आप कह नहीं सकते कि हम दक्ष गुरु नहीं हैं। The day this program you are completing successfully, you will be capacity builded, good, smart teacher under NEP 2020 program. जब हम आपसे कल बात कर रहे थे कि जो हमारी पुरानी शिक्षा नीति थी 1996 की, उसमें ये गुरु दक्षता का प्रोग्राम नहीं होता था। उन दिनों प्रोग्राम होता था ओरिएंटेशन प्रोग्राम। और जब से 2020 एजुकेशन पॉलिसी आई है, तब से यूजीसी ने भी अपने टीचर्स के लिए ओरिएंटेशन का प्रोग्राम बंद कर दिया, जिनको हम कहते थे उन्मुखीकरण, उच्च शिक्षा के प्रति उन्मुखीकरण। उन्मुखीकरण नहीं होता अब क्या हो रहा है? गुरु दक्षता। टीचर हु कैन लर्न ऑल मॉड्यूल्स स्टार्टिंग फ्रॉम एथिक्स, morals, values, then ICTs, then leadership program, then student diversity, then how to go not only in classroom but how to serve the society. तो अब आपको केवल क्लासरूम या लैब वर्क या लाइब्रेरी वर्क या कैंपस में और काम, इन चीजों से बढ़ के आपको सोसाइटी कनेक्ट के प्रोग्राम भी करने चाहिए। You should go to society as well. You should start some program, some project, some workshop, some training program, some awareness camp. या तो you can prepare some videos, जैसे विकास के लिए हम शिक्षक क्या कर सकते हैं अपने कॉलेज के आसपास के गांव में, जैसे मलाला यूसुफजई ने किया। तो पहले आप वहां की समस्याओं का कुछ आकलन करिए। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, TNA उसको बोलते हैं, कि आप अपने डिपार्टमेंट को लेके, कुछ NSS के स्टूडेंट्स को लेके, कुछ और जो आपके क्लब बने हों, इको क्लब आप बना सकते हैं, बहुत सारे क्लब्स आप बना सकते हैं आजकल, और उन स्टूडेंट्स को ओरिएंट कर सकते हैं और उनको लेके आप एक गांव, दो गांव के सर्वे कर सकते हैं, उनके प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का अभिलेखन कर सकते हैं। You can document what they need for their training, for their capacity building. You can also assess the training need of your students. Even you can do something. Thank you for your message. Yes.
Please don't post messages, right? Let me talk to the teachers. तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि एज ए गुड टीचर, एज ए टीचर फॉर फ्यूचर, teacher for getting some good awards and prizes in your future. आप क्या करें कि आप अपने स्टूडेंट्स को लेके अपने आसपास के कम्युनिटी के नीड को पहचाने। आप अपने डिपार्टमेंट के साथ टीचर्स जो आपके आसपास के कॉलेजेस हों उनके टीचर्स, कॉलेजेस के अलावा जो स्कूल्स हों उनके भी टीचर्स का भी कुछ ग्रुप बना सकते हैं और उनको ऑनलाइन मोड में कैसे विकास के जो नए आयाम हैं, विकास के नए आयाम बोले तो जैसे उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन है, क्लाइमेट चेंज। हम सब जानते हैं, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, कल हम लोग बात कर रहे थे, कई टीचर्स लैंग्वेजेस के थे, कई साइंस के थे, कई कॉमर्स के थे, कई ह्यूमैनिटीज के थे, सारे टीचर्स यहाँ पे हैं। तो आवश्यक नहीं है कि जो पर्यावरण विभाग के टीचर हैं वही पेड़ लगाएं, जो कृषि विभाग के शिक्षक हैं वही खेती बाड़ी काम करें, वही ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें। अब तो संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, ज्योग्राफी के, जियोलॉजी, बॉटनी के लोग भी सारे शिक्षक जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चीज के ऊपर 1 क्रेडिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट का वीडियो बना सकते हैं और वो वीडियो अपने कलेक्टर से लेके अपने मिनिस्टर, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने प्राइम मिनिस्टर, सबको आप भेज सकते हैं कि आपके कॉलेज के माध्यम से हमने जो हमारा मूल काम है एजुकेशन एंड रिसर्च, शिक्षा एवं शोध, अनुसंधान, कैसे हम अनुसंधान और विकास को जोड़ रहे हैं, ये है होलिस्टिक एजुकेशन, जो कल हम आपसे बात कर रहे थे कि हम लोग मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन पे चर्चा करेंगे। तो मल्टी डिसिप्लिनरी के बारे में कल बहुत सारी बातें हमने आपसे कही थी, आज भी कुछ उसके जो शेष भाग हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन का जो आउटकम है, क्योंकि एनईपी 2020 एक आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। ये शैलेश, या यस सर। यस, तो हाउ टू गो आउटकम बेस्ड। अभी तक हम लोग जिस तरह की एजुकेशन कर रहे थे वो आउटपुट बेस्ड था। हमने कितने लेक्चर्स लिए, कितने स्टूडेंट ने एडमिशन लिया और हमने कितने नंबर दिए और कितना परसेंट से वो पास हो गया, ये आउटपुट बेस्ड है। आउटकम क्या है? आउटकम ये है कि पास तो हो गया, लेकिन उसको हमारे शहर के, हमारे गांव के, हमारे इंस्टीट्यूट के अगल बगल की इंडस्ट्रीज ने, कंपनीज ने, प्राइवेट फर्म्स ने किसी को नौकरी भी दिया क्या? क्या इंडस्ट्रीज को ये विश्वास है कि हमारे अरविंद कुमार, शैलेश प्रजापति, पूनम कुमारी, ये लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो एजुकेशन दे रहे हैं, वो एजुकेशन इंडस्ट्री रेडी है क्या? जो हम एजुकेशन दे रहे हैं वो इंडस्ट्रीज के काम योग्य है? जो इंडस्ट्रीज चाहते हैं वैसा है? जो प्राइवेट कंपनी चाहती है वैसा है? इसी को कनेक्ट करना है और इसी को आजकल ये लर्निंग कह लीजिए, आप स्किलिंग कह लीजिए, अप स्किलिंग कह लीजिए, रीस्किलिंग कह दीजिए, ये बातें कही जा रही है। फ्यूचर रेडी एजुकेशन फॉर फ्यूचर रेडी 4.0, 5.0 अब आ गया है ना। तो कैसे हम अपने अनुसंधान को, अपने शोध को और अपने एजुकेशन को हम विकास के साथ जोड़ सकें। क्या हमारे जो शिक्षण कार्य है, वो जो आइडिया आजकल सब बाजार में आ रही है, उसके सपोर्ट में हमारा एजुकेशन है क्या? अगर राम नरेश पाल जी हम इतना सोचें कि जो एजुकेशन हम दे रहे हैं,
जो रिसर्च हम कर रहे हैं, या अब तो आप लोग सीनियर हो जाएंगे तो आपके अंडर में खुद रिसर्च स्कॉलर्स आ जाएंगे, आप शोध कराएंगे, तो क्या हमारा रिसर्च, हमारा शोध किसी आइडिया को सपोर्ट करता है क्या? ये एक प्रश्न है, और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप फ्यूचर रेडी आउटकम बेस्ड टीचर, आउटकम बेस्ड टीचिंग, आउटकम बेस्ड रिसर्च, जिसे हम लोगों ने कल क्वालिटी रिसर्च एंड क्वालिटी एजुकेशन कहा था, वो करना चाह रहे हैं, और अगर आप वो नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इस पॉलिसी में काम नहीं कर रहे हैं। आज की शिक्षा नीति को समझने का उसका समरी ये है कि वेदर माई एजुकेशन, माई टीचिंग, माई रिसर्च इज सपोर्टिंग सम आइडिया और नॉट। क्या हम अपने शोध से अपने आसपास की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं कर रहे हैं तो इस तरफ यस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम अपने रिसर्च को आज के डेवलपमेंट से जोड़ना चाहें तो बहुत अच्छा था, कल हम लोगों ने कई ह्यूमैनिटीज के टीचर से बात की। आज हम उस पर थोड़ा और बात करना चाहते हैं। जैसे अभी तक जो हम लोग रिसर्च हो रहा है वो किसी प्रोग्राम का, किसी परियोजना का, किसी प्रोजेक्ट का केवल इन्वेस्टिगेशन तक सीमित है। लेकिन हम अगर ये बात करें शैलेश कि जो हमारी लोक ज्ञान है, जो लोक विज्ञान है, हम जो किताबों का विज्ञान तो कर रहे हैं, कल कई टीचर थे, आज तो नहीं दिख रहे हैं, जो जियोलॉजी के थे, केमिस्ट्री के थे। सर है हूँ, प्रेजेंट हूँ सर, केमिस्ट्री से। हाँ, या रीना, Sir. you are Sir, we are not here. okay, you are here, Prachi is there, Yes, sir. English. So yeah, that's good. So question is कि जो हम विज्ञान आज पढ़ते हैं ये लोक विज्ञान भी है, इसमें क्या लोक विज्ञान क्या है? जैसे अभी 2-3 दिन की छुट्टियां थी, आप जानते हो क्यों थी? कोई गणेश चतुर्थी थी, कोई अनंत चतुर्थी थी, कोई ईद उल मिलाप था। अलग अलग धर्मों में अच्छी चीजें हर जगह हैं। अगर आप ज्ञान की निगाह से देखेंगे, ज्ञान के चश्मे से देखेंगे तो एवरी रिलीजन हैज सेम इम्पोर्टेंट डेज एवरीवेयर। क्यों? क्योंकि जो एक बहुत प्रसिद्ध फ्रांसीसी विचारक थे, उनका नाम था मिशेल कुके। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि नॉलेज इज द पावर। अगर इसको बदल दिया जाए और आज के समय में कहा जाए तो नॉलेज से ही विकास, नॉलेज विकास का आधार है। मतलब क्या निकला प्राची? अगर हमें ज्ञान है तब तो हमारी कोई वैल्यू है, ज्ञान की ही वैल्यू है। तो मिशेल फुके ने बहुत अच्छी बात कही थी कि नॉलेज इज द पावर। एंड आप सब टीचर हैं, ज्ञान ही शक्ति है। तो अब शक्ति की पूजा होने वाली है, आगे 9 दिन आने वाला है। नवरात्र में शक्ति की ही पूजा होगी, और हम लोग तो शिक्षक हैं, तो दुर्गा जी की पूजा तो 9 दिन होती है, लेकिन सरस्वती जी की पूजा तो साल भर होती है। और महीने में एक दिन, जिस दिन सैलरी मिलती है, माँ रीना, लक्ष्मी की पूजा उस दिन लक्ष्मी जी की होती उस दिन लक्ष्मी जी की होती है। तो ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी है। यहाँ भी सर सरस्वती जी की पूजा करते हैं तब लक्ष्मी जी आती हैं।
हाँ। सर एक एक क्वेश्चन, एक चीज और, उसी दिन घर में काल भैरव की भी पूजा होती है। हाँ, तो पहले स्कूल में ही बोलना चाहिए काल भैरव। काल भैरव याद रहने चाहिए। मतलब इसका यह है कि जो हम उसका नाम बार बार ले रहे हैं, फ्रांसिस मिशेल फूको। फ्रांसीसी मिशेल फूको। फ्रांसीसी विचारक फ्रांसिस कोको। सो ज्ञान ही शक्ति है, और शक्ति की ही पूजा होती है, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, या अभी बता रहे थी कि काल भैरव भी हो, उनमें भी कुछ शक्ति होगी। ठीक है। अब इन शक्तियों का हम अपने अनुसंधान में कैसे प्रयोग करें, इसलिए कल हमने ये बात बहुत ठीक से कही थी, और आप शायद सुने होंगे, जो लोग नहीं थे आज फिर से सुन लें, कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों की वैल्यू तभी है जब आपका कोई अच्छा शोध हो, क्योंकि आपके शोध से ही आपके नीचे जो सेकेंडरी एजुकेशन के लोग हैं उनकी किताबें लिखी जाती हैं, उनकी प्रैक्टिकल बनते हैं, उनके मॉडल बनते हैं, और उसके नीचे जो प्राइमरी स्कूल के लोग हैं उनके भी आप ही ज्ञानदाता हो, और आप ही ज्ञानदाता हो इंडस्ट्रीज के भी। अगर कोई इंडस्ट्री को प्रगति करनी है, जैसे आप सुनते होंगे कि आजकल अडानी ग्रुप बहुत आगे बढ़ रहा है, या रिलायंस ग्रुप बहुत आगे बढ़ रहा है, तो हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे वैज्ञानिक, सोशल साइंटिस्ट सब उनके लिए काम कर रहे हैं। दे आर फंडिंग अस। तो कैसे आप उससे लिंक हो, आप कुछ कोलैबोरेशन करिए, कुछ कोऑर्डिनेशन करिए। अकेले अर्चना आप काम करोगे तो आप वो सब काम नहीं कर पाओगे जितनी आज की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप बहुत यंग हैं, आपके अनुभव दूसरे प्रकार के हैं, आपके लिंक अलग टाइप के हैं। लिंक मीन्स लिंकिंग विथ एकेडमिशियंस, Yes, sir. लिंकिंग विथ फंडिंग एजेंसीज, लिंकिंग विथ सीनियर प्रोफेसर्स। तो आपके, जब आप अपने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोग्राम से होलिस्टिक एजुकेशन की तरफ चलेंगे, जो टॉपिक है अपना डिस्कशन करने का, मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन, तो होलिस्टिक एजुकेशन में टर्सरी एजुकेशन के शिक्षकों की आप असिस्टेंट प्रोफेसर्स, एसोसिएट एंड प्रोफेसर्स, इनकी उपयोगिता, इनका महत्व, इनकी शक्ति तब होती है जब इनके पास कुछ प्रोजेक्ट्स हो। तो टीचिंग जो आप करते हैं कॉलेज में, तो केवल टीचिंग होती है। जो टीचर हमारे यूजी लेवल के कॉलेज में होंगे उनके पास तो टीचिंग के अलावा कोई काम ही नहीं रहता। जो पीजी कॉलेजेस में है उनके यहाँ थोड़ा बहुत रिसर्च होता है। जो यूनिवर्सिटीज में है वो टीचिंग रिसर्च दोनों अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर्स हायर एजुकेशन में हैं, भले वो यूजी क्लास को पढ़ाते हों, उनका काम है कि वो सीनियर प्रोफेसर्स, एचआरडीसी जो हमारा बता रहे थे भी, एमएमटीटीसी नाम अब हो गया, ये दिस इज योर मदर्स होम, यू नो। You can join any MMTTC, you can talk to any director to take your help. जैसे किसी को जब पीड़ा होती है ना, पेन होता है, तो their mother. Always, whenever you are in pain, you remember your mother first. बाकी दोस्त और फादर बाद में आते हैं. So this MMTTC is your mother's home. You treat like this. ये आपका मैका है. मैका आप समझते हो ना प्राची, गोरखपुर में. Yes, sir. Yeah. So मैका means mother's home. And what is mother's home, Rina? Mother's home is, remember mother when you are in pain. So who is mother? My mother. Always pain by mother. Yeah. Who is mother? Who is mother? The one who help you out is the mother. Yes. जैसे हमारी पृथ्वी माँ है,
हम इतना सारा उसके खिलाफ पेड़ काट देते हैं, पराली जलाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, पानी गंदा करते हैं, आदि आदि। मदर पृथ्वी माँ तो कभी रिएक्शन नहीं करती, बल्कि आपके पूरे जीवन भर ऑक्सीजन देती है, पूरे जीवन भर आपको खाना खिलाती है, पूरे जीवन भर आपको सुंदर कपड़े, अच्छा काम, अच्छा फल सब देती रहती है, और अंत में आपको यहाँ से विदा भी कर देती है। आपने अच्छा काम किया है तो यू गो टू हेवन, राइट। अभी 2022 में नोबेल प्राइज इसी बात पे मिला है अर्चना। आजकल आज 18 तारीख है ना, आज हिंदू धर्म में पितृपक्ष मनाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट होलिस्टिक एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन टू डेवलप वेल राउंडेड ग्रेजुएट is the flagship program of NEP 2020. तो what is holistic education? अभी आज हम लोगों के यहाँ, आप अखबार में पढ़े होंगे, घर में भी सुने होंगे, जिनकी मदर फादर होंगे वो भी देख रहे होंगे, जिनके नहीं होंगे उनको तो करना ही पड़ता है। क्या करते हैं? कुछ तर्पण करते हैं, कुछ दान पुण्य करते हैं, कोई जल देते हैं, कोई उसमें तिल मिला के देते हैं, कुछ आदि आदि करते हैं। बट this पितृपक्ष, I think everybody know very well. यस सर। So अब इस पे बहुत बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी ऑनलाइन का प्रोग्राम नहीं है, बट होलिस्टिक एजुकेशन में इतना आपको बता रहे हैं कि जो ये पितृपक्ष है जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को फीड करते हैं, उनका मेमोराइज करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, आदि आदि, उसी टॉपिक पे शोध करने के लिए एक अमेरिका के वैज्ञानिक, एक ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक और एक फ्रांस के वैज्ञानिक, तीनों को 2022 का नोबेल प्राइज मिला है। 2022 मीन्स पिछला नोबेल प्राइज, जो भी 2023 में मिला उसके पहले वाला। क्या थियरी थी? जितेंद्र फ्रॉम जियोलॉजी, ये समझते होंगे। थियरी थी क्वांटम इंटेंगलमेंट थियरी। क्वांटम इंटेंगलमेंट थियरी थोड़ा और सरल करके बताएं आपको, क्योंकि प्राची तो इंग्लिश की है। कैन वी गो टू प्राची टू टेल समथिंग अबाउट क्वांटम इंटेंगलमेंट? Sir, I think it is the term which is related to science. So, प्राची यही तो बात कर रहे थे जब हम अनुसंधान को विकास से जोड़ने की बात चर्चा हो रही है, और ये विषय है होलिस्टिक एजुकेशन के अंतर्गत। तो हमने आपसे एक टर्म यूज किया, लोक विज्ञान। एक विज्ञान वो है जो जितेंद्र जी पढ़ के, रीना जी पढ़ के आए हैं, और एक विज्ञान वो है जो लोक विज्ञान है। तो मास एंड पॉपुलर साइंस जिसको बोल सकते हैं। स्नेहा जी आ गई। पॉलिटिकल साइंस क्या बोलते हैं? मास एंड पॉपुलर साइंस। मास एंड पॉपुलर साइंस, मास एंड पॉपुलर साइंस। लोक विज्ञान ही कहो उसको, लोक विज्ञान ही कहो आप तो अच्छा है। जैसे लोक ज्ञान है, एथनोमेट्रोलॉजी सर कहते हैं। ये लोक विज्ञान को। जैसे लोक ज्ञान है। लोक नृत्य सुना है? जी, folk culture, हाँ? folk dance। लोक तकनीक भी सुने होंगे, Yes, sir. Yes, sir. Different places. लोक चिकित्सा भी सुने होंगे। Yes, sir. अब स्नेहा कहाँ गई? तो स्नेहा, जब हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करेंगे, जी सर, जो आपकी एनईपी 2020 का बड़ा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और वो इसलिए है कि हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन में होलिस्टिक नहीं हैं। जैसे स्नेहलता पॉलिटिकल साइंस की हैं, अब अगर अभी स्नेहलता को एक एफिडेविट बनवाना पड़े तो एफिडेविट के लिए ये एक वकील खोजती हैं कि कोई वकील साहब हैं क्या जो एफिडेविट बना के दे दें।
सारे टीचर्स, नॉट ओनली स्नेहलता पॉलिटिकल साइंस, एवरी टीचर, everyone, not only teacher, even a doctor, even a businessman, everybody. कौन खोजते हैं आप? एक वकील खोजते हैं। क्या वकील करेगा? एफिडेविट बनाएगा। और वो वकील कितना पढ़ा है? एलएलबी किए है। तो पीएचडी वाले से, एमएससी एमए वाले से कम ही पढ़ा है, लेकिन जस्ट टू राइट द एफिडेविट वी सर्च लॉयर। ऐसे ही आप अपने घर में रहते हैं, जब आपको कोई सर्दी जुकाम, अभी कोविड आया था, तो हम लोग किसको खोजते हैं? पहले डॉक्टर को। किस चीज को ठीक करने के लिए? सर्दी को, जुकाम को, खांसी को, बुखार को, या किसी के पैर में दर्द है, किसी के सर में दर्द है। और होना क्या चाहिए था? जो आपके, हम लोगों के पहले पीढ़ी के लोग रहे, जो हमारी दादी दादा नाना नानी, वो लोग चिकित्सा की बात करते थे। मतलब ऐसे नुस्खे, ऐसा ज्ञान घर में रहता ही था कि होने न पावे बीमारी। क्या स्नेहलता? स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट? नो, स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट इज वेस्टर्न टर्म। जैसे स्नेहलता, जब आप विदेश जाओगे ना, अमेरिका, जी सर, तो वहां आपको कहोगे कि मेरे कान में दर्द हो रहा है, तो वो जब दिखाने जाओगे तो वो पूछते हैं कि आपका कौन सा कान दर्द कर रहा है, राइट की लेफ्ट? तो अगर राइट कान दर्द कर रहा है तो उसका डॉक्टर अलग है, और लेफ्ट कर रहा है उसका डॉक्टर अलग है। हाथ दर्द कर रहा है तो हाथ के डॉक्टर अलग हैं, पैर दर्द कर रहा है उसके डॉक्टर अलग हैं। ये है स्पेशलिस्ट। ये होलिस्टिक है क्या? सर। ये होलिस्टिक नहीं है। होलिस्टिक क्या है? होलिस्टिक है मेरा आयुर्वेद। होलिस्टिक हेल्थ क्या है? आयुर्वेद। तो आयुर्वेद को ही हम लोक चिकित्सा, आयुर्वेद को हम लोक चिकित्सा कह सकते हैं। हालांकि जब हम लोक चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक को है मसाज थेरेपी, है ना, आप सुने होंगे। जब हम लोक चिकित्सा की बात करते हैं तो ऐसे अनेक विधाएं हैं हमारे समाज में। जो गांव में जल चिकित्सा, आप पानी को कैसे प्रयोग करें कि वो भी आपके लिए औषधि का काम करे, एक ज्ञान हमारे यहाँ था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि लोक चिकित्सा में जो विद्युत चिकित्सा, जल चिकित्सा, मसाज थेरेपी आदि आदि, इनका उपयोग हम रिसर्च में नहीं कर रहे हैं। हम रिसर्च पे क्या कर रहे हैं? एलोपैथी, थोड़ा बहुत कहीं कहीं आयुर्वेद। अदरवाइज अब तो स्नेहलता आयुर्वेद के डॉक्टर भी एलोपैथ की मेडिसिन देने लगे हैं। तो जब हम होलिस्टिक नॉलेज की बात करते हैं, जब हम होलिस्टिक एजुकेशन की बात करते हैं, तो लोक चिकित्सा, लोक ज्ञान मतलब knowledge that is present in your society. And what is that knowledge? You take aloe vera for your good skin, take aloe vera for your good digestion, take aloe vera for your healthy hairs. हम तो इसको भूल गए। अब जब केमिकल बढ़ गया, और केमिकल इतना बढ़ गया कि सोनीपत हरियाणा में है, दिल्ली के बगल में है, जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई 1967 में, वहां पे इतने केमिकल, इतने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, यूरिया, डीएपी, ये सब यूज हुए कि वहां का एक गांव हरकिशनपुर, उसका नाम है, स्नेहलता कभी जाना तो उधर देखना, वो गांव बिकाऊ है। यस सर।
उस गांव में बोर्ड लगा है कि ये गांव बिकाऊ है। क्यों बिकाऊ? इसलिए है कि वहां पे जो लोक ज्ञान था उस पे किसी ने न अध्ययन किया न शोध किया। किया क्या कि यूरिया केमिकल फर्टिलाइजर, डीएपी केमिकल फर्टिलाइजर डाल के फार्मिंग किया और फसलों पे लगने वाले रोगों के पे वो विभिन्न प्रकार के इंसेक्टिसाइड्स, खरपतवार को खत्म करने के लिए वीडीसाइड्स, फंगस को खत्म करने के लिए फंजीसाइड्स, ऐसे तमाम केमिकलों का छिड़काव किया। और नतीजा क्या निकला कि उस गांव में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो बीमार ना हो। जब वो चंडीगढ़ पीजीआई गए तो पीजीआई के डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप अपना गांव छोड़ के चले जाइए, यही दवा है आपकी। क्यों छोड़ के चले जाइए? क्योंकि आपके गांव का पानी बहुत पोल्यूटेड है। तो अब गांव का आदमी गांव छोड़ के कैसे जा सकता है? जैसे भी अर्चना को कोई बोले कि तुम अपना डिपार्टमेंट छोड़ के चले जाओ, कहाँ चले जाएं? Yes. Who teacher can leave that department? Nobody can leave it because we are getting our salary, we are getting our day work. हम वहां जाते हैं, हम शिक्षक का कार्य करते हैं, हम वो कैसे छोड़ सकते हैं? तो किसानों ने पूछा डॉक्टर से भाई हम गांव तो नहीं छोड़ सकते, इसका विकल्प बताओ। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका विकल्प केवल एक है कि आप गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी से नहाएंगे और गर्म पानी ही अपने पशुओं को, गाय को, भैंस को, बकरी को पिलाएंगे। इससे करने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी बीमारी पानी के नाते बढ़ रही है वो बढ़ेगी नहीं, बीमार तो रहेंगे। तो कैन यू इमेजिन कि हु विलेजर कैन अफोर्ड टू यूज दिस टाइप ऑफ वाटर? कितना पानी गर्म करेंगे आप? शहरों में तो स्विच ऑन करने पे पानी गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें लोग परेशान हो जाते हैं जाड़े के दिनों में। तो गांव वालों ने पूरे सरकार विभाग के विरोध में गांव पे बोर्ड लगा दिया कि ये गांव बिकाऊ है। और ये बात है लगभग आज से 12 वर्ष पहले की। उस समय एक गांव बिकाऊ था। क्यों? लोक ज्ञान का उपयोग नहीं हुआ, केवल विज्ञान जो बाहरी है उसका उपयोग हुआ। आज स्नेहलता हमारे देश में करीब 77 विलेजेस ऐसे हैं जो विदेशी ज्ञान के कारण बिकाऊ का बोर्ड वहां लगा है। दिस इज द नीड ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। अदरवाइज व्हाट विल हैपन? अभी आपने देखा कोविड जैसी महामारी आई और रेमडेसिविर से लगा के बहुत सारी दवाइयां आई, कोई काम नहीं की। ये सारी दवाइयां एड्स की हैं। जो एड्स हुआ उसकी कहानी आज नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एड्स की। सो ऑल द मेडिसिन जो एड्स में उपयोग होता था और पड़ा था, एड्स की सोसाइटी हर गांव में खुली हुई है, हर बाजार में खुली है। एड्स निवारण सोसाइटी, एड्स कंट्रोल सोसाइटी हर डिस्ट्रिक्ट में खुली, लेकिन आज तक एड्स किसी मानव शरीर से निकला नहीं है, कहीं दिखा नहीं है कौन सा वायरस है। वैसा ही वायरस कोविड का रहा, लेकिन उसमें जब आपने लोक ज्ञान आधारित, लोक चिकित्सा आधारित हो गए, आप कड़े पीने लगे, आप विभिन्न प्रकार के डिकॉक्शन तैयार किए, राइट, then you feel happy. So Jitendra, those who live in the home during COVID, they are good. But those who went to hospitals, they suffered a lot. Rarely they back to home. Yes, sir. Right. So जब हम विकास की बात करें, जैसे इसको थोड़ा और सरल भाषा में आपसे कहें तो अगर अब स्नेहलता वाला विषय आ रहा है कि अगर आपके कानून बहुत कठोर बना दें
इसका मतलब ये नहीं है कि आपका समाज न्याय संगत हो जाएगा। कठोर कानून ही प्रसन्नता के द्योतक नहीं होते, और सोसाइटी में तो हैप्पीनेस चाहिए। तो हैप्पीनेस इज नेवर बाय रूल्स, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन, दिस इज द होलिस्टिक एजुकेशन। टू बी हैप्पी, डू यू नीड ओनली स्ट्रिंजेंट रूल्स? क्या केवल कड़े कानूनों से ही हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा? So नहीं। that's why a new era concept is good governance and less governance. दिस इज होलिस्टिक एजुकेशन। ये गुड गवर्नेंस आएगी कहां से? जब स्नेहलता किसी स्टूडेंट को पढ़ाएंगी होलिस्टिक एजुकेशन, वही स्टूडेंट बड़ा होके ये गुड गवर्नेंस का काम देखेगा। एंड गुड गवर्नेंस फॉर होम? गवर्नेंस तो उसके लिए है ना जिनको गवर्नर की जरूरत है। हमारे अर्चना को, जितेंद्र को कहां जरूरत है किसी गवर्नर की? दे आर टीचर, दे डोंट नीड एनी गवर्नर। ये तो शिक्षक हैं, ये तो गवर्नर पैदा कर रहे हैं। तो ये कैसे होगा? जब हम लोक मेघा, लोक नृत्य, जो टैलेंट सोसाइटी में है, जो नॉलेज सोसाइटी में है, जो टेक्नोलॉजी सोसाइटी में है, जो मेडिकल हेल्थ वेलबीइंग सोसाइटी में है, जैसे आजकल आप जितेंद्र देख रहे होंगे योगा, जितेंद्र जूलॉजी के हैं। Yes, sir. योगा तो आप एम्स में चले जाइए तो एम्स के लोग कहते हैं योगा करिए, ठीक है ना? तो दिस इज होलिस्टिक, दिस ऑल इज अंडर योर होलिस्टिक एजुकेशन। जब आप खाली तकनीक या चिकित्सा नहीं स्नेहलता, अगर आप लिबरल आर्ट्स की बात करेंगे तो लिबरल आर्ट्स भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेडिकल साइंस, जितना कंप्यूटर साइंस, जितना इंजीनियरिंग। इसीलिए हमारे सभी शिक्षक आजकल अनुभव कर रहे होंगे कि लिबरल आर्ट उतना ही महत्वपूर्ण विषय बन के अब उभर रहा है जितना कंप्यूटर साइंस या मेडिकल एजुकेशन। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अब लिबरल आर्ट्स की एजुकेशन दे रहे हैं। साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी, अभी मैं गया था बंगलोर, निमंस, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है, यू विजिट एनी टाइम। दे आर ट्रीटिंग patients without any medicine, no medicine, only psychology. So Snehata, whenever we talk about this holistic education, it is very clear कि जो हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे होलिस्टिक लर्निंग के, am I audible? Yes, sir. 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 थैंक यू। हमारे जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे होलिस्टिक लर्निंग के, जिनका नाम आप लो तो तक्षशिला, द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, जहां पे टीचर पीपल रैपर्ड था, मैन मेकिंग थी, कैरेक्टर बिल्डिंग था, फिलॉसफी ऑफ होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन थी, जहां पे आप नाम सुनते होंगे कि अपने देश में एक विवेकानंद हुए। विवेकानंद जी ने कैसी शिक्षा दी, कहां पे जाके दिया, और विवेकानंद आज हम यूथ डे के रूप में मनाते हैं। He was not a teacher truly, but who was Vivekananda? Every teacher know very well. विवेकानंद जी के साथ हम अरविंदो जी का नाम सुनते हैं, श्री अरविंदो, रविन्द्रनाथ टैगोर। जिस प्रोग्राम में आप ज्वाइन किए हैं ना, मालवीय मिशन, उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। मोहन मालवीय। तो ये मदन मोहन मालवीय
रविन्द्रनाथ टैगोर, श्री अरविंदो, विवेकानंद, ऐसे लोगों के बारे में भी थोड़ा आप लोग और समझिए ये क्या करते थे और इनका होलिस्टिक एजुकेशन के प्रति, होलिस्टिक लर्निंग के प्रति क्या इनके प्रिंसिपल्स थे, उसको भी समझना जरूरी है। होलिस्टिक एजुकेशन में वी मस्ट लर्न द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ होलिस्टिक एजुकेशन। हम आपसे बात कर रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। बिना लोक मेघा के सोसाइटल इंटेलेक्ट, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हमारे लोगों की अपनी इंटेलिजेंस है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या हम सोसाइटल इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं, जहां एक बहुत कम पढ़ा लिखा बालक बड़ा होके रिलायंस का फाउंडर बन जाता है, बनता है कि नहीं? Who was the founder of Reliance company? Everybody धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी। 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 और कितना पढ़े थे वो कितना पढ़े थे सब जानते हैं, राइट? तो हम जब होलिस्टिक एजुकेशन की बात करें तो हमें इन चीजों को भी समझना पड़ेगा कि भागवत गीता आज भी बहुत बड़ी सी बड़ी कोर्ट में जब आप कोई पेश होता है तो नहीं कहता है कि मैं डिटाल पे, सेवलॉन पे बैठ के शादी करूंगा। शादी जब करते हैं या शुभ मुहूर्त मनाते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं, तो कहाँ पे बैठ के करते हैं? यस प्राची? मंडप। उस मंडप को क्या डिटाल से धोते हैं, सेवलान से धोते हैं? कोई गाय के गोबर से पवित्र करते हैं। से सुन लिया उत्तर? जी जी। ये क्या था? ये लोक ज्ञान है। लोक ज्ञान। हाँ, जिसको हम कहते हैं लोक मेघा। लेकिन किसी की शैलेश, किसी की शादी आपने डिटाल से, या आजकल क्या आता है वो जो वॉशरूम धोते हैं, लेजॉल। एसिड। सो मेनी गुड नेम्स, ठीक है? किसी का शुभ मुहूर्त किसी का हो, इन सब तो बड़े शुद्ध होते हैं भाई, तभी तो वॉशरूम तक ले जाते हैं उसको शुद्ध करने के लिए। इससे आपने कभी कोर्ट में कहा कि हम डिटाल पे हाथ रख के सत्य बोलेंगे, सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे? किस चीज पे हाथ रख के बोलते हैं? जो भी हो, गीता पे या कोई धार्मिक, कुछ भी हो, गीता हो, कुरान कोई हो, भी धार्मिक बाइबल हो, ग्रंथ कुछ भी हो, जो नहीं, हम खाली गीता की बात नहीं करेंगे, हम गीता, कुरान, बाइबल सबको समान ही मान की बात करते हैं, बिकॉज वी आर टीचर। हमारा एक ही संप्रदाय है, हम सब शिक्षक हैं, बाकी हमें किसी उस पर डिटेल में जाना नहीं है। जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं वो किसी भी धर्म के हों, उस पे हाथ रख के हम अभी भी बात करते हैं। ये क्या है? तो प्राची, ये डिटॉल, सेवलान, जो अभी 4-5 नाम इन लोगों ने बताया, उस पे क्यों नहीं करते? ये पूजा पाठ उस पे धो के क्यों नहीं करते? सर ये तो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप हुआ ना, बाकी तो सब पहले से चली हुई चीजें जो है लोक ज्ञान और लोक विधाओं पे ही हम निर्भर हैं। लेकिन जो आज का विषय है ना स्नेहलता, हम उस पे अनुसंधान नहीं कर रहे हैं जी। निर्भर तो हैं। आपकी भी शादी हुई होगी, कल आप बता रहे छोटी बच्ची है, जी तो सर। गाय का गोबर तो आया होगा। यस सर। लेकिन गाय के गोबर में कोई लेख लिखा क्या स्नेहलता ने? कोई छोटी सी आर्टिकल लिखी क्या अखबारों में? कोई अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में कुछ लिखा पढ़ा क्या? किसका बड़ा महत्व है और इसमें ये तत्व है, ये शुद्धि का, ये पर्यावरण को रखता है ठीक, मिट्टी को करता है उपजाऊ, पानी को करता है शुद्ध? कहीं लिखा क्या किसी ने? पौधों में पत्तियां लाता है, पौधों का डेवलप करता है, किसी ने लिखा आज तक? फर्टिलिटी बढ़ाता है सॉइल की, प्राची ने लिखा क्या? किसी ने नहीं लिखा। क्या कर रहे हैं लोग? तमाशा देख रहे हैं। किस चीज का तमाशा देख रहे हैं? कि ये जो बोतल में भर के आएगा उसी से साफ होगा।
उसी से साफ होगा, उसी से शुद्ध होगा, वो केमिकल होगा। और बाद में रीना जैसे केमिस्ट्री के टीचर ये बताते रहेंगे कि ये तो टॉक्सिक है, इसकी टॉक्सिसिटी सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की हेल्थ को खराब करेगा। यही टॉक्सिक चीजें जब फूड वेब में, फूड साइकिल में आएंगी तो आपके हेल्थ को डिटोरेट करेंगी, और तब आप क्या हो जाएंगे? बीमार, मिट्टी हो जाएगी बांझ, आप हो जाएंगे इनफर्टाइल। किसी भी शहर जाओ, ट्रेन से जाओ, कार से जाओ, तो शहर में इंटर करने के 20 किलोमीटर पहले दीवालों पे बड़े बड़े नाम लिखे रहते हैं कि आप इनसे मिलिए, आप इनके पास जाइए, आप ये काम करिए। तो नॉट ओनली सॉइल फर्टिलिटी इज चैलेंज्ड, fertility of human beings, fertility of all our system is challenged. Why? Because we are not doing holistic education. We are not going natural. That's why yesterday I told you, holistic education, multidisciplinary education is education of future. Education for sustainable development. तो जो 17 गोल्स सतत विकास के हैं, कभी टाइम मिला तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे 2 व्याख्यान देंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हमने बहुत सारा काम उस पे किया है, उसमें हमारे पेटेंट्स भी है। तो सर आप जरूर एक लेक्चर लें उस पर, प्लीज सर उसका उस पर लेक्चर आप जरूर लें सर, वो तो तभी सुनना होगा, पसंद करें। तो तभी होगा जब आपके प्रोग्राम में जगह होगी, या आप हमारे HRDC ज्वाइन करोगे तो हमारा लेक्चर सुनोगे। सर उससे होलिस्टिक व्यू डेवलप होगा हम लोग का सर। ज्वाइन कर सकते हैं। Otherwise, what you can do, you can take my number and you can call me anytime. I am always available for teachers. Okay. सर प्लीज सर। Yeah. So, जो बात आपसे हम कर रहे हैं कि how to connect the development of future, development of present with research. तो रिसर्च कहाँ करना है? क्या हम इन चीजों पे रिसर्च कुछ कर रहे हैं जिससे आइडिया को सपोर्ट हो? नो, वी आर नॉट डूइंग। व्हाट वी आर डूइंग? प्राची, वी आर बारोइंग द आइडिया, वी आर परचेजिंग द आइडिया। जैसे मोबाइल फोन कितने का होगा और कितने में बिकता है? पेजर जो मोबाइल फोन के पहले था, वो कितने का था, कितने में बिकता है? इनकी पूरी वैल्यू 1000 से कम है, बिकता है सीधे 1.5 लाख का। Who is making money? The person who made this knowledge that 2 people can talk and end to end encrypted. आपकी बात कोई दूसरा नहीं जान पाएगा, इसी का पैसा है। अदरवाइज अगर हम शैलेश से बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट में खड़े होके, तो 2-3 लोग जरूर देखेंगे कि डायरेक्टर साहब शैलेश से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो चर्चा का विषय जरूर रहेगा थोड़े देर तक। बट अगर वो इन टू इंड इनक्रिप्टेड है, ये टेक्नोलॉजी अर्चना ने बना ली, अर्चना कैन मेक मनी, एनीबॉडी कैन मेक मनी, नॉट ओनली अर्चना। तो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी लाना है जो पैसा बना सके, या आपको ऐसी टेक्नोलॉजी लानी है जो सोसाइटी को डेवलप कर सके, जो सोसाइटी को ऐसा डेवलप करे कि हमारी जनरेशन, आने वाली जनरेशन, उसके आगे वाली जनरेशन भी स्वस्थ रहे। तो टीचर का क्या काम है? टीचर का काम है ऐसे नॉलेज को देना, ऐसे नॉलेज को उत्पन्न करना, ऐसे नॉलेज को राइट करना, ऐसे नॉलेज को पब्लिश करना, ऐसे नॉलेज पे पेटेंट करना, ऐसे नॉलेज का इनक्यूबेशन करना, दिखाना, प्रदर्शन करना जो सर्वहिताय हो, गुड फॉर ऑल। इसीलिए हमने किसका नाम लिया? हमने नाम लिया आपके बीच में विवेकानंद जी का, अरविंदो का, रविन्द्रनाथ टैगोर का, मदन मोहन मालवीय से, और बहुत सारे लोग हैं। जब आप तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला ऐसे लोगों की बात करेंगे, जब आप भागवत गीता, कुरान, बाइबल की बात करेंगे, जो और भी स्क्रिप्ट्स हैं, खाली 3 नहीं और भी बहुत सारे हैं, वो इंडिया सेंट्रिक होलिस्टिक लिविंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, चाहे वो शरीर का विकास हो, चाहे माइंड का हो, चाहे इंटेलेक्ट का हो, चाहे हमारी आत्मा का हो, इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। और इससे बड़ी बात
शैलेश जी, concept of Guru Shishya Parampara. And what is this concept of Guru Shishya Parampara? Nowadays, who is Guru and who is Shishya? Very much confused in your department. जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि भाई अभी कोई नाम तो आया नहीं है पूरी दुनिया में कि विश्व गुरु कौन है। पहले तो हम ही थे, तो हम मान के चले कि आज भी हम ही हैं। ये किस आधार पे था? ये जो गुरुकुल थे, इसमें हम गुरु शिष्य परंपरा, कोई भी अलग अलग धर्म थे, अलग अलग प्रकार के थे, लेकिन हम एक का नाम ले रहे हैं, गुरुकुल। आज रीना, क्या आपके डिपार्टमेंट में कुछ गुरुकुल जैसा है? सर अभी तो कुछ नहीं है, बट बहुत सर अब तो बहुत कम देखने को मिलता है। गुरु और शिष्य के बीच में रिलेशन जो पहले हुआ करते थे सर, मतलब आज से 10 साल पहले की बात बता रहे हैं, और आज के सर, आज का इस बार का टीचर्स से और जो 10 साल पहले का टीचर्स से अभी हमने देखा सर, बहुत बहुत अंतर देखने को मिला हमें सर। मतलब जो पहले के बच्चे थे उनमें आज भी बहुत रिस्पेक्ट है अपने टीचर्स के लिए, बट आज का जो अभी मैंने मनाया 5 सितंबर इस बार का, ऐसा लग रहा था सर कोई मतलब नहीं। सिर्फ अब वो बच्चे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना गुरु सिर्फ मोबाइल को मांगते हैं, और वो गूगल बाबा जो आ गए बस उन्हीं को मानने लगे हैं। आई थिंक रीना की बात से सभी टीचर सहमत होंगे। इसलिए रीना, इसलिए रीना, ये जो शिक्षा नीति आई है, शिक्षा नीति की आवश्यकता रीना ने जो बताया वो शायद हमारे सभी शिक्षक सहमत होंगे कि शिक्षा नीति की आवश्यकता पे बल कि हम जिनको ज्ञान देते हैं, जिनको शिक्षा देते हैं, जिनको अनुसंधान देते हैं, जिनको अनुसंधान के आधार पे उनको हम डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करवाते हैं, जिनको गोल्ड मेडल मिलता है, क्या उनका अपने शिक्षक के प्रति कोई लगाव नहीं होना चाहिए? तो गुरु वाला जो स्थान था वो कहाँ है? क्या केवल जो वर्तमान में है यही सस्टेनेबल है? ये होते रहना चाहिए? जो कल बता रहे थे कई टीचर 2255 में रिटायर होंगे, तो जब रीना ने आज अभी 2024 सितंबर की कहानी सुनाई तो आगे क्या होगा? 5 सितंबर 2024 और 5 सितंबर 2055। तो इसलिए होलिस्टिक एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की आवश्यकता, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, रीना ने बहुत अच्छा बताया उसको कि व्हाई दिस होलिस्टिक एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर फ्यूचर। ऐसे ही जब हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की, उसमें आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो रीना ने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट। एवरी टीचर, देखो टाइम कम है, हम यहाँ कितनी बातें करेंगे, तो उसको हम एक शब्द में समेट रहे हैं, आर्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो क्रिटिकली थिंक कि आपके जहां से आप आते हैं, जिस जगह से आप आते हैं, वहां पे क्या क्रिटिकल थिंकिंग इनोवेशन का, होलिस्टिक का, मल्टी डिसिप्लिनरी का हो सकता है। वहां पे क्रॉस डिसिप्लिनरी, वहां पे इंटर डिसिप्लिनरी, वहां पे ट्रांस डिसिप्लिनरी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक मेनू बनाइए। जैसे हम होटल में जाते हैं ना रीना, हम कहते हैं भाई कौन सी क्या खिलाएंगे, तो वो कुछ नहीं बोलता, वो क्या करता है 2, 3, 4, 5 पन्ने की किताब लाके मोटी से रख देता है, और क्या कहता है कि आप इसको पढ़ो। अब उसको पढ़ो भाई सोनू जी, और उसको पढ़ के आप समझ नहीं सकते कि उसमें सब्जी में क्या पड़ता होगा उसका नाम पढ़ के। आई मीन ऐसे ही आप मिठाई की दुकान पे जाइए, तो स्वीट्स के जो नाम हैं वो किस चीज से बनी है, कैसा होगी, क्या होगा, कोई लेना देना उसका नहीं है। आइसक्रीम की दुकान पे जाइए तो आइसक्रीम के ऐसे नाम हैं जो उसके गुण धर्म से कोई लेना देना कुछ नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए इंटरफेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर फर्स्ट
and then to student. This is your policy now. ये जो मिस्ट्री है ना मिठाई के नाम में, जो मिस्ट्री रहस्य है सब्जी के नाम में, रोटी के नाम में, दाल के नाम में, भात के नाम में, चावल तक तो ठीक है, अब चावल के बाद वो ऐसा राइस और उस राइस का क्या बना के दिखाते हैं कि वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस. So I'm just giving you example, an easy example where you can understand and work like a good teacher. So try to work on interface of holistic and multidisciplinary education. And you know, then जो कल बात किया था आपसे, very important, the concept of flexibility and innovative. So you try to do your curriculum, जो आप पढ़ाते हैं ना, पहले दक्ष गुरु वही है जो अपने पढ़ाने वाले सिलेबस या करिकुलम का ही नयाचार करे, उसको आप नया बनाओ, उसको नीड बेस बनाओ. थोड़ी बात आज आपसे डुअल डिग्री करना चाह रहे थे, तो कल आपको हम शेयर किए थे डुअल डिग्री 2-3 प्रकार की है. एक है डुअल डिग्री, मतलब 2 डिग्री एक साथ आप कर सकते हैं. ज्वाइंट डिग्री, 2 डिग्री को, अपनी डिग्री को 2 यूनिवर्सिटी, मे बी फॉरेन यूनिवर्सिटी और मे बी इंडियन यूनिवर्सिटी के साथ ज्वाइंट कर सकते हैं. मतलब आपका जो मार्कशीट होगा उसमें क्या लिखा होगा, उसमें लिखा होगा, अभी तक तो ये होगा कि आपने इस विश्वविद्यालय से पीएचडी किया या इस विश्वविद्यालय से पीजी किया, लेकिन अब आपको जल्दी ही ऐसी डिग्री मिलने लगेगी जिसमें यह होगा कि आपने ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए किया. तो आप ये मत सोचना कि वो गलत लिखा हुआ है. दिस कॉल्ड ज्वाइंट डिग्री, अर्चना. एंड व्हाई दिस ज्वाइंट डिग्री? दिस ज्वाइंट डिग्री कम टाइम में ज्यादा ज्ञान, एक तो ये. दूसरा, मान लो शैलेश आप कहाँ से हो? सर देवरिया से हूँ, वैसे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आता है, उसी नगर में पोस्टिंग है सर. अब मान लो कि एक लड़का, एक स्टूडेंट, लड़का नहीं, एक स्टूडेंट गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो, शैलेश साहब का सब्जेक्ट क्या है? सर सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी. वो लड़का गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है सोशियोलॉजी, और उसको पता चला कि शैलेश प्रजापति देवरिया में एक कॉलेज में है जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, और उसको पता चला कि सोशियोलॉजी में जो रूरल अप्रेजल, पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल है ना, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल टेक्निक होती है सोशियोलॉजी में. यस सर. उसको पता चला, यस गोस्वामी जी, उसको पता चला कि एक शैलेश जी टीचर हैं जो देवरिया में पढ़ाते हैं, लेकिन वो पीआरए बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. जब हम लोग पढ़ते थे तो उस स्टूडेंट की मजबूरी है कि वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में ही पढ़ेगा, वो पीआरए पढ़ने शैलेश के पास नहीं जा सकता था, क्योंकि हम लोगों की पॉलिसी ऐसी थी कि आप अपना अगर जाओगे तो आपको एब्सेंट लगा दिया जाएगा. लेकिन शैलेश जी अब ज्वाइंट डिग्री में वो स्टूडेंट अगर डीयू में एनरोल्ड है और आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी में टीचर हो और आपकी एक टेक्निक पीआरए बहुत अच्छा आप पढ़ाते हो, आपने कोई इस पे किताब लिख रखी है, वो स्टूडेंट पीआरए पढ़ने आपके पास जा सकता है, उसको एब्सेंट नहीं माना जाएगा, और उसकी डिग्री जो होगी वो डीयू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी दोनों को मिलके बनेगी. कंडीशन केवल एक है कि कम से कम 30 क्रेडिट, पूरे कोर्स का 30 क्रेडिट वो दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो. मतलब 70% क्रेडिट एक यूनिवर्सिटी से और कम से कम 30 क्रेडिट दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, तो उसको ज्वाइंट डिग्री मिलेगी. पहले ये अलाउड नहीं था,
तो रीना, अब अगर तुम्हारी केमिस्ट्री में पता चला कि आपके अंडर पढ़ रहा है और उसको लगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री में बहुत अच्छा कुछ पढ़ाया जाता है, तो दैट स्टूडेंट कैन ज्वाइन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी. जी सर. दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट डिग्री. सर इसमें मेन स्टूडेंट मेन डिग्री से जहाँ से वो इनरोल्ड है वहाँ 70% कवर करेगा. हाँ, जहाँ Main. एनरोल्ड है, यस, Okay. जहाँ पे वो एनरोल्ड है, हाँ. ये जरूरी नहीं है कि जहाँ पे एनरोल्ड है वहां 70% करे. ये है कि 30% उसको दूसरी यूनिवर्सिटी से करना है. जैसे 25% वहां से करता है और 75% जहां एनरोल्ड है वहां से करता है, तो उसको ड्यूअल डिग्री नहीं मिलेगी. 30% मिनिमम. 70 प्लस 30 होना चाहिए सर, इसका मतलब. नहीं 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 सिर्फ मिनिमम 30% सेकेंडरी होना चाहिए, बाकी इसमें नहीं, इतना ऐसे हो मत गया. समझो इसको. वो स्टैनफोर्ड से 70% कर सकता है, वो गोरखपुर से 70% कर सकता है, और डीयू से खाली 30% कर रहा है. जहां एनरोल्ड है वहां भी, और जहां से वो करना चाहता है दूसरा वाला वहां से भी, कहीं से उसको 30% मिनिमम करना पड़ेगा. ओके. तो जरूरी नहीं है कि जहाँ एनरोल्ड हो वहां से वो 70% बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ओके सर. बिल्कुल जरूरी नहीं है. लेकिन जहां एनरोल्ड है वहां भी मिनिमम 30% होना चाहिए. ओके. ओके सर. ठीक है. यस तो सर. उसकी मार्कशीट में दोनों यूनिवर्सिटी का नाम छपेगा. तो कितना अच्छा लगेगा कि वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरा सेमेस्टर किया है या एमए किया सोशियोलॉजी. सर हम लोग के समय में नहीं था सर ड्यूअल. हम लोगों के समय में तो ये था रीना कि गर्मी की छुट्टी में आपको पढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं है, आपको गर्मी ही झेलनी है. बिल्कुल और अब सर. अर्चना के टाइम में वो गर्मी में तो चला जाएगा कहीं पहाड़ पे पढ़ने. बिल्कुल. देखो अर्चना इज laughing. यस सर. अर्चना इज स्माइलिंग. सो अर्चना, यू सी दिस इज ब्यूटी. जब हम Yes, बारिश में, जाड़े में, जैसे बहुत कोल्ड है तो छुट्टी हो जाती है, राइट? आप सुनते हैं कि जाड़ों में स्कूल कॉलेज बंद, या गर्मी में स्कूल कॉलेज बंद. कितने दिन का गोस्वामी जी? 1 महीने के लिए बंद है. यस सर. तो 1 महीने Yes, क्या sir. करेगा? 1 महीने कोई क्या करेगा? 1 महीने मटर गश्ती करेगा, इधर उधर घूमेगा, बदमाशियां करेगा, कुछ और करेगा. अब क्या है कि वो 1 महीने हिल्स पे जा सकता है, किसी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है, गर्मियों में भी कहीं ठंडी जगह जा सकता है. इस तरह से स्टूडेंट रीना अपने को कस्टमाइज कर सकता है. Why to waste the time? Why not to use time in best of the ways? रेगुलर रह के कर सकता है या फिर ऑनलाइन, जैसे 1 मंथ की छुट्टी नहीं है. नहीं, ये सब रेगुलर है. ओके ओके ऑनलाइन में कोई डिग्री नहीं मानी जाएगी डुअल, ओके. और ओनली रेगुलर. ओनली रेगुलर. भाई तभी तो जाड़े से बचेगा, तभी तो अर्चना के यहाँ से गर्मी में जाएगा वो. अगर वो गर्मी वहां भी लग रही है तो फिर पढ़ाई कैसे होगी? Yes, Himanshu Pandey have raised the hand. Himanshu, come forward. Yes, Himanshu. Himanshu, please unmute and ask your question. सर वेरी गुड आफ्टरनून. Good afternoon. सर मेरा सवाल एक है, जब आप डिग्री की बात कर रहे हैं तो मेरा सवाल है कि ये डुअल डिग्री का कॉन्सेप्ट तो अभी पिछले 1-2 वर्षों से यूजीसी ने अडॉप्ट किया है, जहां पे हम कर सकते हैं. क्या पहले सर हमने बहुत लिटरेचर ढूंढने की कोशिश की, हमें मिल नहीं पाया, तो क्या ऐसा हो सकता था क्या कि एक रेगुलर कोर्स और एक डिस्टेंस एजुकेशन से या करस्पॉन्डेंस से 2 डिग्री एक साथ ले सकते थे पहले? तो फ्रॉड है वो. अगर अच्छा. आपने किया है मानसू तो उसको किसी बताइएगा नहीं, अर्चना को हम बताइएगा. नहीं सर हमने आप किसी को बताइएगा, उसको अपने पास रखे रहना और एक साथ एक ही बताना. बता दोनों सकते हो आप, लेकिन एक बार में एक ही बताना. जैसे जो वैकेंसी निकली वही बता देना, दूसरा मत बताना. अदरवाइज देयर विल बी FIR ऑन यू एंड यू विल बी ग्रेटली.
आपको नौकरी से बाहर कर दी जाएगी। आप टॉप ऑफिसर है। अपोलो में ऐसा कुछ है, आज तक कोई की क्या स्थिति है? 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं सर? पहले तो प्लीज डोंट मेक chaos, डोंट मेक chaos, so many people taking। खाएगी ना, रखना चाहती। कीर्ति मैडम प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। हिंदी में बताना पड़ेगा उनको। कीर्ति मैम अपने आप को म्यूट कर लीजिए। माइक ऑफ कर लीजिए। कीर्ति मैम हाँ, आप कर लिया, आप कर लिया। कीर्ति मैम आवाज कर लीजिए। कीर्ति जी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। लग रहा है माइक्रोफोन दूर दूर रखिए हमको The पता नहीं। host can mute everyone. ये लगता है। लग रहा है कोई बच्चा है उनके यहाँ वो तंग कर रहा है। वो भी आया गाना सुन रहा है। कीर्ति जी अपना माइक ऑफ करेंगे नहीं आज मिला। उसकी वजह से क्लास सफर हो रही है। और किसी के पास इनका नंबर हो तो इन्हें कॉल कर दीजिए ना। I think admin can remove him from meeting, right? Sir, the host can do. The host can mute everyone. जो होस्ट कर रहे हैं वो म्यूट कर देना। उनके नंबर पे पर्सनल कॉलिंग करके नंबर Kirti, you mute yourself, otherwise I will leave meeting. सर प्लीज इनका नंबर भी नहीं पता चल रहा कौन सा है, मैंने देखा भी। चलो, थैंक्स गॉड, यही है ऑनलाइन एजुकेशन। हाँ हिमांशु, बैक टू हिमांशु। जी सर। हाँ, आप क्या कह रहे थे? प्लीज कंटिन्यू। सर मैं बस यही पूछना चाह रहा था, उसमें सर हमने किया नहीं है। मैं बेसिकली इसलिए जानना चाह रहा था सर कि कुछ लिटरेचर मैं ढूंढ रहा था यूजीसी के पास भी कि क्या डिस्टेंस एजुकेशन से या करस्पॉन्डेंस से नहीं किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं सर। नहीं हिमांशु, ऐसा मिला है, और ऐसा हमारे 22 नवंबर 2022 का जो एक्ट है वो आप पढ़ लो। उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि dual degree is not applicable in online mode, dual degree is not applicable in open mode, and dual degree is not applicable in distance learning mode. अच्छा मैम, वैसे कल हस्बैंड ने कल हस्बैंड ने हाँ बात करी है, मैम से कर ली कर लीजिए प्लीज। बहुत परेशान हो Suniti Lata, please mute your mic. What you are doing? Please mute your mic. Thank you. So Himanshu ji, please don't disturb. हाँ बात हो गई, वो संजीव भी छुट्टी में है, मैडम से ही बात होगी, उनसे ही बात होगी, वो आजकल में आ जाएंगे। सुनीति जी माइक ऑफ कर लीजिए। बात कर रहे हैं लगा, पता ही नहीं है। हाँ वो हस्बैंड ही बात करते हैं, कई बार बात करते माइक ऑफ कर लीजिएगा सुनीति मैम। उन्होंने कह दिया, बोले मैडम नहीं कोई और कर दिया, बोले मतलब मैं 1-2 दिन छुट्टी हो रहा है उनके लिए, मैं आके तुरंत कर दूंगी। मैम प्लीज माइक ऑफ। कोई और मैडम किसी और से कराएंगे तो कोई और कर देगा, वरना मैं 1-2 दिन पे आके फिर मैं ही कर दूंगी। मीटिंग का होस्ट सबको ऑफ कर दे, लास्ट 10 मिनट केवल ओपन करें ताकि सब लोग अपने डिस्कशन कर सकें। हमेशा के लिए होस्ट को ऑफ कर देना चाहिए सबके माइक को। अच्छा ठीक, वैसे अच्छा। Dr. Suniti Lata ma'am, are you hearing? Yes ma'am.
हेलो, आप अपना माइक म्यूट करिए ना मैम, कब से आपका माइक ओपन है? माइक म्यूट सर करिए यहाँ मैम। सॉरी मैम, सॉरी सॉरी सॉरी। सॉरी But सर, only you are not sorry. Everybody is sorry. That is very bad. What sorry you are telling, Suniti? You are disturbing everybody and saying sorry. Please take care. You are a teacher. You should be digitally literate. You know. आपको माइक कब करना है ऑन आप जानना चाहिए, वीडियो कब करना है जानना चाहिए। आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किए हो, आपको ये नहीं पता। यस हिमांशु मैं ये कह रहा था कि डुअल डिग्री में 3 प्रकार है, डुअल डिग्री, ट्यूनिंग डिग्री, ज्वाइंट डिग्री। हम लोग ज्वाइंट डिग्री तक बात किए। तो ज्वाइंट डिग्री ये है कि आप 2 विश्वविद्यालयों में कोई भी हो, इंडियन हो या फॉरेनर हो, उनमें कोर्स अपने एक, जैसे आप मान लो एमएससी कर रहे हो किसी सब्जेक्ट में, सपोज रीना का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हो, आप किसी 2 यूनिवर्सिटी से मिलके उस कोर्स को कर सकते हैं, उसे कहेंगे ज्वाइंट। आपकी मार्कशीट पे लिखा होगा 2 यूनिवर्सिटीज का नाम आएगा, उसमें हमने ये बताया कि मिनिमम 30 क्रेडिट आपको करने हैं, 30 क्रेडिट से कम एक यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। दूसरा है ट्यूनिंग डिग्री, चूंकि ज्यादा टाइम नहीं हम लोगों के पास, काफी टाइम ये लोग डिस्टर्ब किए। सो ट्यूनिंग, आपने ट्विंस सुना होगा, जुड़वा बच्चे, राइट? तो जुड़वा बच्चे क्या है? ट्विंस हैं, वो एक ही कोख से आते हैं, एक ही गोद में रहते हैं। तो यू कैन ट्यून योर डिग्री, लेकिन मार्कशीट में केवल एक ही यूनिवर्सिटी का नाम लिखा जाएगा जो आपका मूल यूनिवर्सिटी होगा, बट आप उसको किसी दूसरे यूनिवर्सिटी में, दूसरे कॉलेज में भी 30 क्रेडिट मिनिमम वहां से पढ़ सकते हैं। बट ट्यूनिंग में आपकी मार्कशीट में जैसे एक मदर होती है उसके 2 ट्यून्स हो सकते हैं, ऐसे ही मदर यूनिवर्सिटी एक होगी, यूनिवर्सिटी का नाम एक होगा, परंतु you can do 30% of your credit, 30% credit to any college, any university, anywhere. तो डुअल डिग्री, ज्वाइंट डिग्री, ट्यूनिंग डिग्री। परंतु इन तीनों में एक काम होगा कि अगर आप किसी विश्वविद्यालय से अपने को ज्वाइंट डिग्री करते हैं, ट्यूनिंग डिग्री करते हैं, डुअल डिग्री करते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का आपकी यूनिवर्सिटी के साथ MOU होना चाहिए। हिमांशु पांडे को बता के स्टूडेंट को जाना पड़ेगा कि हम डुअल डिग्री प्रोग्राम में ट्यूनिंग कर रहे हैं, ज्वाइंट कर रहे हैं, इस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। वो हिमांशु को भी पता होना चाहिए और जहां वो कर रहे हैं वहां भी पता होना चाहिए कि 2 यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। इसलिए उन दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में कोलैबोरेशन, MOU होना चाहिए कि हम 2 यूनिवर्सिटी मिलके इस तरह का शिक्षा शोध करेंगे। नंबर 2 यह है कि जैसे करस्पॉन्डेंस कोर्स इग्नू करती है, ऑनलाइन कोर्स कई लोग करने लगे हैं फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस। richest university of the world is स्टैनफोर्ड। स्टैनफोर्ड पिछले 10 साल से ऑनलाइन प्रोग्राम में महारत हासिल किए है, और ऑनलाइन प्रोग्राम के वजह से ही दे आर द रिचेस्ट यूनिवर्सिटी। हिमांशु जी जानते हैं, एक दंपति थे, पति पत्नी, उनके बेटे की डेथ हो गई, वो ऑक्सफोर्ड गए, ये कहने के लिए गए कि मैं अपने बेटे के नाम से कोई एजुकेशन के लिए सपोर्ट करना चाहते हैं, आप ऑक्सफोर्ड के लोग हमारे बेटे के नाम से कोई डिपार्टमेंट खोल दो, हम पैसा देंगे और ये शिक्षा उस पर करी जाएगी। ऑक्सफोर्ड ने मना कर दिया, वही हमारे यहाँ तो कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग डेथ होती है, सब लोग आएंगे, सब अपने बेटे और अपने मेमोरी में डिपार्टमेंट खोलेंगे, मेरा क्या होगा। वो पेरेंट्स वहां से लौट गए और उन्होंने डोनेट करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी खुलवाया, और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी आज दुनिया की रिचेस्ट यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन कोर्स कर रही है।
और तीसरा मोड है ओपन। तो अगर आप कोई कोर्स पत्राचार से करते हैं, इग्नू से करते हैं, कोई कोर्स ऑनलाइन करते हैं, स्टैनफोर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से करते हैं, या ओपन कोर्स करते हैं, जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम है, हर स्टेट में है, 13 यूनिवर्सिटीज में ओपन, 13 स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, इग्नू 14वीं है सबसे बड़ी। ओपन स्कूल चलता है आजकल, नेशनल ओपन स्कूल, जो 12वीं तक काम करता है। इन सब में किया गया कोई कोर्स डुअल डिग्री नहीं है। डुअल डिग्री तभी है जब आप फेस टू फेस फिजिकल मोड में पढ़ाई करेंगे। आप एडमिशन लीजिए, कैंपस जाइए, क्लासरूम में बैठिए, लेबोरेटरी जाइए, लाइब्रेरी जाइए, तभी डुअल डिग्री में वो कवर होगा। ओके हिमांशु? जी सर, जी सर। यस, या और जो आप बात कर रहे थे पहले, तो पहले तो आपको बताना ही नहीं है, पहले तो आज पनिशमेंट। पहले तो 2 डिग्री एक साथ करना पनिशमेंट है। थैंक यू हिमांशु। नाउ राजकुमार वैदिक, प्लीज यू आस्क योर क्वेश्चन। राजकुमार जी सर, सादर प्रणाम। प्रणाम। मैं सर ये जानना चाह रहा था, हालांकि कुछ बात क्लियर हो गई है, लेकिन फिर भी मैं जानना ये चाह रहा था, जैसे एक डिग्री किया जाता है प्राइवेट मोड से, जो अपनी स्टेट यूनिवर्सिटीज कराती हैं, आगे बोलिए सर वो लेफ्ट हो गए किसी वजह से, नेटवर्क इशू। चले गए। हमें लगता है नेटवर्क। हाँ, काफी क्लाउड है ना, काफी बारिश हो रही है जगह जगह, उससे हाँ। भी डिस्टर्बेंस होता है। सो एनी मोर क्वेश्चन? अर्चना हैव रेज्ड द हैंड। यस अर्चना। सर एक बार ट्विन वाली डिग्री फिर से बता दीजिए, ट्विनिंग डिग्री। अर्चना एक्चुअली आप इसको ऐसे समझिए जैसे जुड़वा होते हैं ना, जुड़वा, ट्विंस। जी तो सर। जैसे जुड़वा होते हैं वैसे ही जुड़वा में क्या होता है कि देयर इज वन मदर, राइट, देयर इज वन मदर। सो ऐसे इसको कोरिलेट करना कि देयर इज वन मदर यूनिवर्सिटी, देयर इज वन मदर यूनिवर्सिटी, नाम उसी का होगा। जो ट्विंस होते हैं नाम मदर का ही होगा, सेम मदर, वन मदर। ऐसे ही ट्विंस में ओनली वन मदर यूनिवर्सिटीज देयर, तो मार्कशीट में, उसके डिग्री में, उसके क्रेडेंशियल्स में नाम एक ही यूनिवर्सिटी का आएगा, ठीक है। लेकिन अपने 30% क्रेडिट वो स्टूडेंट किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर सकता है, उसे कहेंगे ओके टीन। सर। या थैंक यू अर्चना। वी विल गो टू डॉक्टर रीना सिंह। सर आप बोल सकते हैं क्या? ये पूछना चाह राजकुमार, रही थी just सर, listen to Reena first, then we will come to you. Yes, Reena, over to Reena. NEP 2020 में स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी चीजें आई हैं सर। रिसर्च फील्ड में पीजी कॉलेज में, जैसे यूनिवर्सिटी लखनऊ यूनिवर्सिटी से मेरा कॉलेज एफिलेटेड है, बट रिसर्च फैसिलिटी सर वहाँ पे नहीं है अवेलेबल। तो हम लोग सर कैसे, टीचर जो है वो कैसे अपने आप को और ज्यादा अब मैं करना चाहती भी हूँ तो भी सर, सर JNPG कॉलेज है सर, अभी उतनी फैसिलिटी सर है नहीं। आप तो हमारे बगल में ही हो। जी सर बिल्कुल। सर एक ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे मैंने केमिस्ट्री से किया हुआ है रिसर्च। नहीं, इस पहले वाले प्रश्न का उत्तर यहाँ नहीं दे सकते, जब आप मिलना तो बताएंगे। बिल्कुल 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 सर। दूसरा ये जानना चाहते, जैसे मैंने केमिस्ट्री से रिसर्च की थी, काइनेटिक्स था मेरा टॉपिक में, तो सर जैसे अभी आपने बताया कि हम लोग होलिस्टिक नहीं करते, तो अगर हम, मेरा मन बहुत करता है कि हम डिफरेंट टाइप्स मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनके बारे में हम रिसर्च करें, जबकि हो रहा है बट हम करना चाहते हैं, तो क्या सर हम चेंज कर सकते हैं अपनी फील्ड? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और अभी बाय द वे हम जो नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट बोर्ड है, जो काफी फंड हम देते हैं, हम उसके मेंबर हैं। और अभी हम लखनऊ में हैं, आशियाना में। यू हैव टाइम, यू कैन कम। प्लीज आप नंबर शेयर कर दीजिए, या फिर सर मैं कैसे आपको नंबर शेयर कर देंगे, अभी इसी पे शेयर कर देंगे, हर कोई देख सकते हैं।
जी So जी thank सर, you, Rina. We will go to Rajkumar. Yes, Rajkumar. जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि कोई कैंडिडेट एक तो किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मोड में कोई डिग्री लेता है और दूसरी डिग्री उसी दौरान वो आपकी आवाज बहुत लेता है। कट के आ रही है। राजकुमार, बी क्लोज टू योर माइक। आपकी आवाज क्लियर नहीं है हमारे तक। जी सर, मैं ये कह रहा था, मेरी आवाज आ रही होगी। अब ठीक है, अब बताओ। हाँ सर, जैसे कोई व्यक्ति एक तो स्टेट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट मोड में एक डिग्री लेता है और उसी दौरान एक डिग्री लेता है वो इग्नू से डिस्टेंस मोड में, तो ये डुअल डिग्री में आएंगी या दोनों ठीक रहेंगी? ये कहीं नहीं डुअल डिग्री है जी। डुअल डिग्री आपको हमने बता दिया कि केवल फिजिकल मोड में की गई डिग्री ही डुअल डिग्री है। जी जी। और फिजिकल मोड में भी टाइम ओवरलैप नहीं होना चाहिए। राजकुमार जी, कंफ्यूज मत रहना। कोई डिग्री प्राइवेट में, कोई डिग्री डिस्टेंस में, कोई डिग्री ऑनलाइन में अगर किसी ने किया है तो वो डुअल डिग्री में नहीं आता। ठीक है, थैंक्स सर। थैंक यू। सो वी विल गो टू डॉक्टर गोस्वामी। जी सर, थैंक यू सर। सर मेरा पूछना था कि ये जो डुअल डिग्री है तो इसमें सर एक समय में 2 डिग्री का जैसे आपने बताया, तो दोनों डिग्री मतलब इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट किस तरीके से करेगा बच्चा अगर करेगा तो? हाँ, यही है, आप सही बता रहे हो। आपके क्लास की टाइमिंग, जैसे मान लो कि आप बीएससी कर रहे हो और बीटेक कर रहे हो। सपोज उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी भी करना चाहता है और केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर में बीटेक भी करना चाहता है। तो पहले ऐसा अलाउड नहीं था, अब अलाउड है। अब खाली उसमें गोस्वामी जी कंडीशन ये है कि जो उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास का टाइमिंग है वही टाइमिंग कंप्यूटर साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग का नहीं होना चाहिए। बस ओके सर, इसमें खाली एक ही बात है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो वी विल गो टू स्नेहलता। थैंक यू। थैंक यू सर। सर मेरी कुछ क्वेरी ये थी कि एक तो सर कोविड-19 आया जिसकी वजह से सेशन वैसे भी बहुत डिले रहा, हर यूनिवर्सिटीज के अपने एलएमएस नहीं बन पाए और टाइम से डिग्रीज नहीं पूरी हुई। दूसरी चीज, उसी बीच एनईपी भी आती है हमारा और हम लोग अभी भी बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है उसके बारे में कि किस तरीके से कोर्सेज चलाया जाए, वो 4 ईयर का होगा कि 3 ईयर का होगा कि डुअल डिग्री होगी कि को करिकुलर किस तरीके से ऑप्ट करेंगे, क्रेडिट सिस्टम कैसे होगा। तो क्या ये सही टाइम था एनईपी को एग्जीक्यूट करना और किस तरीके से हम और उसके अवेयरनेस को कर पाए अपने बीच में? बच्चों को अभी नहीं पता कि मेजर माइनर क्या है और मतलब स्टिल दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट, एग्जाम छूट जाता है उनका और अभी भी सेशन हम लोग मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट आल्सो? तो कैन यू जस्ट क्लियर दिस डिलेमा ऑफ एनी? स्नेहलता, एक्चुअली कोविड ने किसी से पूछ के नहीं आया, किसी ने अलाउ नहीं किया कि कोविड तुम आओ। अब जैसे आप कह रहे हो ना कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम यहाँ से नाम ले रहे तो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। तो कोविड केम आइदर फ्रॉम जेनेटिक और फ्रॉम लेबोरेटरी, वी डोंट नो। वो चमगादड़ से आया कि चाइना की लैब से आया, कोई पता नहीं है, आया और बिना पूछे आया। तो उस समय तो आपका क्रेडिट और क्लासरूम ही क्यों, उसमें तो कोर्ट, उस समय तो बाजार सब बंद थे, सबने सफर किया और सबसे ज्यादा सफर तो एरोप्लेन वालों ने किया, उनको यात्री नहीं मिलते हैं। सबसे ज्यादा सफर होटल वालों ने किया, कोई खाना नहीं खाने जाता था। तो उसका उत्तर तो आपको मिल गया, राइट। और जहां तक बात रही कि हम सफर कर रहे हैं, वर्डन है, तो प्राची सिंह बताएगी आपको कि जब हम लोग पढ़ते थे तो कोई डुअल डिग्री नहीं थी, कोई कोविड ने, तो भी लोग फेल होते थे। तो फेल होने वाले लोग और प्रॉब्लम के लोग तो पृथ्वी पे सदैव से रहे हैं। तुम्हारे क्लास में भी जब आप 10th में तब भी लोग फेल हुए होंगे, 12th में थे तो भी फेल होते थे, ग्रेजुएशन में भी फेल होते हैं, ड्रॉप आउट्स होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को तो कोई पॉलिसी नहीं कवर अप कर सकती। ऐसी कोई पॉलिसी नहीं आ सकती कि भाई एवरीथिंग इज शाइन एंड ब्राइट, ये सब लोग रहेंगे। इसलिए उसको कोरिलेट करना मुश्किल है।
बट ये है कि इस तरह की महामारी या इस तरह की प्रॉब्लम में, स्ट्रगल में जो स्ट्रेंथ है वही आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रगल सबको करनी पड़ती है, बट उसमें जो स्माइल करते रहते हैं ना वो आगे बढ़ जाते हैं, अदरवाइज बाकी फेल हो जाते हैं। तो आई थिंक क्वेश्चंस किसी के बचे हों तो यू कैन रेज योर हैंड। यस पूजा, यस पूजा, फर्स्ट पूजा, देन हिमांशु। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हमारा जो कॉलेज है वो MLSU से एफिलेटेड है। अरे कहाँ से हो आप? सर मैं गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा जो चित्तौड़गढ़ में है वहाँ से, राजस्थान से हूँ बेसिकली। तो उन्होंने लास्ट ईयर NEP को मतलब लाया है, तो अभी मुझे उसका थोड़ा इवेल्युएशन सिस्टम समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को थोड़ा सा आप संक्षेप में बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास सच में नहीं, मैंने काफी पढ़ा लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप एक्सपर्ट हैं तो प्लीज थोड़ा संक्षेप में बताइए। नहीं, ये जो आपने पूछा ना प्रश्न, जी सर। ये संक्षेप वाला प्रश्न नहीं है, ये तो आपको इवेल्युएशन आप कैसे करोगे उसका प्रोसेस लेट डाउन है। कल हमने डिस्कस किया था क्रेडिट सिस्टम। हाँ सर, क्रेडिट वो स्केल है जिससे आप अपने एकेडमिक्स को मेजर करोगे। जैसे हम कोई सैलरी पाते हैं तो कितनी सैलरी मिलती है, फिर उसमें हमारी बेसिक पे कितना है, DA कितना है, HRA कितना है, CCL कितना है, सब कुछ लिखा होगा। फिर उस मनी को कितना इनकम टैक्स कटेगा, कितना हमारे सेविंग रहेगा, ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप क्रेडिट, फाइनेंशियल क्रेडिट समझते हैं। ऐसे ही एकेडमिक क्रेडिट जब आप समझेंगे, जिसकी चर्चा कल हुई थी, तभी आप उस पर आगे बढ़ सकते हैं। तो पूजा, अगर आपको डिटेल में कुछ चाहिए तो यू कैन कंटैक्ट अस एनी टाइम, वी विल गिव यू फुल आंसर। यस हिमांशु। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अगर आप अलाउ करें तो एक छोटा सा सवाल और मेरा है, क्योंकि आप सीनियर फैकल्टी हैं सर, तो आप FRC में भी आप लोग रहे होंगे। एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सर कि अगर एक डिपार्टमेंट है कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उस डिपार्टमेंट से एक बच्चे ने MCOM किया और रिसर्च किया, रिसर्च के बाद MBA किया, तो विल his MBA or her MBA will be counted along with PhD or without PhD? No. Even in dual degree program, no 2 PhDs allowed. 2 PhD तो कभी भी अलाउड नहीं है। सर मेरा सवाल PhD के लिए नहीं है, मेरा सवाल ये है कि उसने PhD बैक में किया है और MBA बाद में किया है, तो क्या MBA के साथ PhD का वेटेज मिलेगा अगर MBA में वो अप्लाई करता है? नहीं, आप सवाल दोबारा पूछो ब्रदर। सवाल को आप ऐसे पूछ रहे हो कि अभी वो आप ही नहीं क्लियर हो कि आप पूछना क्या चाहते हो। सर मेरा ये सवाल है कि एक डिपार्टमेंट है कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, वहां से एक बच्चे ने MCOM किया फिर PhD किया, उसके बाद वहीं से MBA किया। ठीक है, अलग अलग सेशन में सर, PhD के बाद MBA किया। बिल्कुल तो, ठीक है। तो MBA में अगर वो अप्लाई करता है तो इस PhD का नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अरे भाई, PhD तो उसने कॉमर्स में किया ना सर? कॉमर्स में नहीं किया, क्योंकि एक ही विभाग है, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं, PhD तो MBA करने के पहले किया। हाँ, पहले जरूर किया सर। तो एक रूल है हमारे UGC का हिमांशु जी, उसे कहते हैं इक्विवेलेंस, रूल ऑफ इक्विवेलेंस। तो रूल ऑफ इक्विवेलेंस को उस डिपार्टमेंट ने अडॉप्ट किया है कि नहीं। अगर रूल ऑफ इक्विवेलेंस को अडॉप्ट किया है तो वो काउंट हो सकता है, ठीक है जी। अगर उसने रूल ऑफ इक्विवेलेंस को अडॉप्ट नहीं किया है, जैसे कोई भी PhD करने के लिए हमारे यहाँ मोनोडिसिप्लिनरी में होता था, उसी सब्जेक्ट में आपको PG होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ जी। तो PG में एडमिशन जिस सब्जेक्ट के आधार पे हुआ वही काउंट होगा। AICT डोमेन का इंस्टीट्यूशन है, UGC डोमेन का क्या है ना कि यूनिवर्सिटी में दोनों है, AICT भी है UGC भी है, जो आप बता रहे हो। जैसे MBA जो है वो AICT डोमेन से मान्यता मिलती है और कॉमर्स या जो फाइनेंस मैनेजमेंट है वो UGC से मिलता है।
जी। वहां पे रूल ऑफ इक्विवेलेंस इसीलिए बनाया गया है, जैसे आप जेआरएफ करते हैं यूजीसी में या जेआरएफ करते हैं आईसीआर में, सीएसआईआर या आईसीआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या आप करते हो आईसीएमआर मेडिकल में, तो पहले मेडिकल वाला अलग एडमिशन लेता था, एग्रीकल्चर वाला अलग लेता था, सीएसआईआर या यूजीसी वाले सीएसआईआर लैब में, यूजीसी वाले यूनिवर्सिटी में लेते थे। लेकिन इसका 4 साल पहले इक्विवेलेंस कर दिया गया, तो अब कोई भी कहीं एडमिशन ले सकता है, उसको फेलोशिप मिलेगी। ठीक है, वैसे ही जो आपका प्रश्न है हिमांशु जी, अगर आपके यहाँ एक्ट जो हमारे यहाँ रेगुलेशन ऑफ इक्विवेलेंस है वो उसको अडॉप्ट कर रखा है, तो एक्सपर्ट कमेटी उसको इक्विवेलेंस मानते हुए पीएचडी की वैल्यू देगी। नहीं मानेगी कमेटी तो नहीं देगी। थैंक यू। हमने अपना नंबर शेयर किया है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। थैंक यू सो मच सर। तो आप इसका ईमेल भी नोट कर सकते हो और नंबर भी नोट कर सकते हो। आई थिंक सब लोग नोट कर चुके होंगे। यस सर। थैंक यू सो मच सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। वेरी थैंक यू सो मच। नाउ अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो वी कैन लीव यू नाउ एंड यू आर मोस्ट ओके सर। सर बहुत अच्छे दोनों सेशंस हैं। यस सर। थैंक यू सर। आपका और मिले हम लोग का। थैंक यू सर। यूजफुल रहा सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।